Click here to subscribe our channel. Do not forget to press bell icon to get regular updates of free videos. ठीक है, start. We will start with section A. In fact, section A include unit number 1 and unit number 4 both, first unit and fourth unit. Unit number 1 is general equilibrium, efficiency and welfare. General equilibrium, efficiency and welfare. So first unit is general equilibrium, efficiency and welfare. For this unit, reference के accordingly chapter number 31 is exchange, chapter number 33 welfare. These two chapter from variant. ठीक है, तो ये चैप्टर भी पढ़ना और वेरिएंट का वर्क भी है. Apart from these two chapters, it is chapter number 13 but selected pages, and chapter number 13 from Nicholson and Snyder. ठीक है, certain pages of chapter number 13. So in the first unit basically we have to explain general equilibrium condition, efficiency and welfare, and just I give a brief idea. General equilibrium is basically you will be following 2 by 2 by 2 model. 2 by 2 by 2 model means there are two factor of production, labor and capital. These two factor of production will be allocated to produce two good. You can say good X and good Y, or good 1 or good 2. So labor and capital is being allocated to produce good 1 and good 2. And these two goods will be distributed between person A and person B. So the first criteria is labor and capital has to be efficiently allocated in the production of good 1 and good 2. But what will be the meaning of efficiency? We have to explain it. And here whenever I use the word efficiency, it refers to Pareto efficiency. Now what is the meaning of Pareto efficiency? We will be explaining that. So labor and capital has to be efficiently allocated in the production. That will be the first criteria. That will be known as production efficiency. After producing these two goods, you have to distribute these two goods between A and B, and that distribution must also be efficient. So that will be consumption efficiency or exchange efficiency. And the third efficiency which is required is simultaneous equilibrium of production and consumption. Simultaneous of production and consumption. So although in the general equilibrium concept we should read production efficiency, consumption efficiency and simultaneous, but your chapter will start from directly chapter number 31, exchange. And exchange of what? गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट जो पॉइंट है प्रोडक्शन का वो आपको भी नहीं पढ़ना. वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 31. So that 31 is basically explaining the second criteria, which is consumption efficiency. This production and simultaneous will be explained in this chapter number 13, Nicholson Snyder. But mainly the question will be basically on the consumption efficiency. And whenever these conditions are not satisfied, if these conditions of efficiency are not satisfied, then it refers to failure of market. So what is exactly market failure? Market failure is basically failure of competitive market to allocate resources efficiently. Failure of competitive market to distribute goods efficiently. So when Pareto efficiency conditions are not satisfied, it refers to market failure, and market failure will arise due to three reasons, and these are three chapters. So unit number 4 is market failure, and for market failure one reason is externality, other is provision of public good, and third reason is asymmetric information.
asymmetric information. And these are three separate chapters, chapter 34, 36 and 37. This will be chapter number 34, chapter number 36 and chapter number 37, and these three chapters from variant. ठीक है. So this is a overall content for section A. So it is general equilibrium, efficiency, welfare and market failure of market. Clear है? Just introductory point clear है? When I refers to market failure, it means what is failing? Competitive market is failing to allocate resources efficiently. Competitive market is failing to distribute goods efficiently. So it is Pareto efficiency criteria. Whenever it is not satisfied or fails, then it refers to failure of competitive market. So given this content, we can start with chapter number 31, exchange. नेक्स्ट पेज पे लिखिए चैप्टर 31 एक्सचेंज. तो डायरेक्टली याद रखिएगा कौन सा कंडीशन स्टार्ट करना है मुझे. पैरेटो एफिशिएंसी के लिए तीन कंडीशन है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड साइमल्टेनियस. बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कंजम्पशन, दैट इज सेकंड वन से स्टार्ट करें, कंजम्पशन एफिशिएंसी. सो एक्सचेंज चैप्टर. In totality we can say 3 chapter here and 3 chapter here, 6 chapter in total. Out of 6, 5 chapter variance है पढ़ने. 1 chapter number 13 is from Nicholson and Snyder. Clear यहाँ तक? So from next page write down chapter number 31 exchange. Chapter 31 exchange. Chapter 31 exchange. Consider that there are two persons. So we are referring to two-person economy. So person A and person B, and A and B has some endowment of goods. So how to write that endowment? An endowment means what? सेम 3 के अंदर आपने एक्सप्लेन कर रखा बाइंग एंड सेलिंग चैप्टर में. एंडाउमेंट इज व्हाट यू हैव. सो अ फार्मर हैव प्रोड्यूस लेट अस से 20 kg ऑफ राइस एंड 30 kg ऑफ व्हीट, तो वो उसका एंडाउमेंट हो जाएगा. तो आप इस एंडाउमेंट को लिखेंगे इस फॉर्म में, एंडाउमेंट विथ पर्सन ए एंड एंडाउमेंट विथ पर्सन बी. बट पर्सन ए इज हैविंग एंडाउमेंट ऑफ 2 goods, good 1 and good 2. So write it in this form, endowment of good 1 with person A, endowment of good 2 with person A. Suppose for example I say farmer A has 50 kg of rice and 20 kg of wheat. एग्जाम्पल के लिए नंबर लिख लिया आपने, क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू लिखी होगी यूनिट्स के फॉर्म में. एंड फार्मर बी हैज एंडाउमेंट of good 1 with B, endowment of good 2 with B. Suppose farmer B has produced 40 kg of rice and 30 kg of wheat. क्लियर है? क्वेश्चन पेपर में ये नंबर गिवन होंगे, ये उसका एंडाउमेंट हो गया, आप उसे W या ओमेगा के सिंबल से डिनोट कर लीजिए. नाउ इफ आई से इफ देयर आर ओनली 2 person in the economy, then how much is the total quantity of rice available? जो क्वांटिटी अवेलेबल होगी वही एक्सचेंज होगा. तो एक्सचेंज बेसिकली बिटवीन 2 person होना है एंड फॉर दीज 2 कमोडिटीज होनी है. सो हाउ मच इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड 1 अवेलेबल? 50 एंड 40 90. उस 90 को आपने यहां ले लिया, ठीक है. ये एक्स एक्सेस का डिस्टेंस कर लिया 90. क्लियर? हाउ मच इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड 2 अवेलेबल? 50. Take that 50 on vertical axis.
गुड 1 के एंडाउमेंट को ऐड करके हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनाया है, गुड 2 के एंडाउमेंट को ऐड करके वर्टिकल एक्सेस लिया है, एंड ऑफ दैट डायमेंशन ड्रॉ द बॉक्स. दिस बॉक्स इज नोन एज एजवर्थ बॉक्स. ठीक है, इस बॉक्स को एजवर्थ बॉक्स ऑफ कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन की बात हो रही है. एजवर्थ बॉक्स ऑफ कंजम्पशन है. ठीक है, तो बॉक्स बना लोगे. पहली बात, बॉक्स बनाने के लिए क्या करना है मुझे, बॉक्स का डायमेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंडाउमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. गुड 1 के एंडाउमेंट को ऐड करेंगे और गुड 2 के एंडाउमेंट को ऐड करोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस के लिए. क्लियर. नाउ यू हैव टू मार्क एंडाउमेंट बंडल इन दैट बॉक्स. प्लेस पर्सन ए हियर एंड प्लेस पर्सन बी हियर. ठीक है, ए का पोजीशन कन्वेंशनल जो ओरिजिन है वहां हो जाएगा और बी का जो पोजीशन होगा वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो जाएगा. मतलब फॉर पर्सन ए ये गुड 1 है और इधर गुड 2 है, एंड फॉर पर्सन बी दिस इज गुड 1 एंड दिस वन इज गुड 2. क्लियर. नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट इनसाइड द बॉक्स. मार्क करते समय सिर्फ ये बताना ए का एंडाउमेंट क्या है, 50 एंड 40. तो 50 और 40 का कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हो बॉक्स में. पर्सन ए के पास 50 kg राइस एंड 20 kg व्हीट है, तो टेक 50 ईयर एंड 20 ईयर. 50 और 20 का कोऑर्डिनेट यहां मार्क कर लीजिए एंड मार्क दैट पॉइंट एज पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट. वो ए का एंडाउमेंट हुआ या बी का, दोनों का हो गया, क्योंकि हमने टोटल तो मान ही लिया था. तो टोटल अगर हमने फिक्स कर रखा है, सो इफ दिस इज द क्वांटिटी ऑफ गुड 1 विथ पर्सन ए, देन हाउ मच मस्ट बी दिस डिस्टेंस. If this is 90 overall, up to this is 50, so rest will be 40. So 40 is endowment of good 1 with B. If this overall is 50, up to this is 20, so rest must be 30. So 30 is endowment of good 2 with person B. ठीक है, अब मार्क करते समय ए के एंगल से सोचना है, बट वो ऑटोमेटिकली बी का मार्क हो गया. क्लियर. तो बॉक्स के अंदर जहां एंडाउमेंट लिखेंगे वहां पे ए और बी नहीं लिखना है. मतलब एंडाउमेंट का पॉइंट दोनों के लिए, एंडाउमेंट बंडल सेम नहीं है बट एंडाउमेंट का पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा. क्लियर. सो यू कैन मार्क दैट. बॉक्स बना सकते हो, बॉक्स के अंदर का जो एंडाउमेंट बंडल होगा वो मार्क कर लेंगे. तो आपका पहला काम बेसिकली एक्सचेंज चैप्टर में ये होता है, मतलब पहले पे तो मुझे बॉक्स बनाना आना चाहिए. वो बॉक्स का क्वेश्चन भी आपको पास पेपर में अगर देखते हैं तो देयर विल बी सम इंफॉर्मेशन इन विच यू हैव बीन टोल्ड टू ड्रॉ दैट बॉक्स. मतलब इंफॉर्मेशन गिवन है और उस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको पहले बॉक्स ड्रॉ करना है. लाइक इफ आई शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस एंडाउमेंट के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गिवन है. मतलब लाइक if you see this question, फोर्टीन का ये क्वेश्चन है. पर्सन ए और पर्सन बी के लिए यूटिलिटी फंक्शन गिवन है. लेटर ऑन अभी बाद में ये गुड इनिशियल एंडाउमेंट गिवन है. तो पर्सन ए का एंडाउमेंट इंडिविजुअल के पास 0,20 है और बी का 40,10 है. तो बॉक्स बन जाएगा. टोटल क्वांटिटी गुड 1 की कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी गुड 1 की 40 होगी. एक्स एक्सिस पे 40 ले लेंगे और गुड 2 के लिए 40 और 30 का डायमेंशन बना लोगे. और फिर एंडाउमेंट बंडल ए के अकॉर्डिंगली बताओ 0,20. तो 0,20 कहाँ लाई करेगा, गुड 1 0 है और गुड 2 20 है. तो अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो इसकी प्लॉटिंग क्या होगी बताओ. इफ यू वांट टू प्लॉट दैट in Edgeworth box, then what will be the plotting? Endowment was 0,20. Endowment was 0,20 पर्सन ए का और बी के लिए 40,10. तो गुड 1 की टोटल क्वांटिटी होगी 40 और गुड 2 के लिए 30.
ठीक है, 40 और 30 के डायमेंशन पे एजवर्थ बॉक्स बना लेंगे। और वो बॉक्स बनाने के बाद आपको ए के लिए इंडाउमेंट बंडल मार्क करना है। तो अगर ए के लिए मार्क करते हैं तो ए इज हैविंग 0, तो ए के लिए गुड 1 0 रहेगा और गुड 2 20 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 20। दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, अब बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आपको जो मेन फंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वो ये है, वी हैव टू बेसिकली डिटरमाइन सेकेंड थिंग हियर which is now independent of that number I draw a box। ठीक है, आर्बिट्ररी नंबर्स मैंने ले लिया और यहाँ एक सर्टेन बंडल मार्क कर दिया एंडाउमेंट का। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ ए, बिकॉज यहाँ ए है। यहाँ से लिखोगे आप एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ ए। हियर व्हाट यू विल राइट, endowment of good 2 with B, and here endowment of good 1 with B. B is here। एक रफ डिस्क्रिप्शन में यहाँ दे रहा हूं, जस्ट रिकॉल सेमेस्टर 3 सेम 3 में बाइंग एंड सेलिंग के अंदर जब बजट लाइन ड्रॉ किया जाता है तो बजट लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू विच बंडल, एंडाउमेंट बंडल। वाई बजट लाइन ऑलवेज पास थ्रू एंडाउमेंट बंडल, इट ऑलवेज पास थ्रू एंडाउमेंट बंडल बिकॉज एंडाउमेंट बंडल इज ऑलवेज अफोर्डेबल टू द कंज्यूमर। जो आपके पास है वो तो आप हमेशा कंज्यूम कर ही सकते हो, और एंडाउमेंट की जो वैल्यू है वही इनकम डिटरमाइन करता है। मतलब फार्मर ने अगर 40 kg राइस और 30 kg वीट प्रोड्यूस किया तो उसका इनकम क्या होगा, उस एंडाउमेंट की वैल्यू, और वैल्यू का मतलब हो गया प्राइस से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। गिवन दिस एंडाउमेंट बंडल वेयर इज द ऑप्टिमल चॉइस, ऑप्टिमल चॉइस कुड बी टू द लेफ्ट, कुड बी टू द राइट। तो अगर मैंने इसके लेफ्ट साइड ऑप्टिमल चॉइस मार्क किया, सो फ्रॉम दैट ऑप्टिमल चॉइस यू डिटरमाइन x1 and this one was w1, ये पर्सन ए के लिए। this x1 was called as gross demand, and what is about the meaning of net demand? Net demand was gross demand minus endowment. Net demand can be positive or net demand can be negative. If it is positive then person will be buyer, if it is negative then person is seller. So if x1 is less than endowment, एंडाउमेंट से कम कंज्यूम करने का मतलब है पर्सन ने गुड 1 को क्या किया, सेल किया है, और गुड 2 बाई किया है। बट आप ये बताओ पर्सन ने किसको सेल किया और किससे बाई किया है। सेम 3 में क्या करना था, सेम 3 में आप उससे कंसर्न नहीं था। सेम 3 में मानते थे कि हमने मार्केट में सेल कर दिया और मार्केट से बाई कर लिया। बट इन दिस सेमेस्टर 4 व्हेन वी आर रेफरिंग टू 2 पर्सन इकोनॉमी, 2 ही पर्सन इकोनॉमी में, तो अगर ए गुड 1 सेल कर रहा है तो वो किसको सेल करेगा, बी को, और अगर बाई कर रहा है तो किससे बाई करेगा, बी से बाई करेगा। ये एक्सचेंज है यहाँ पे, ए इज सेलिंग समथिंग एंड ए इज बाइंग समथिंग। कुछ नहीं करना, ये जो कंसेप्ट आपने पहले बना रखा था उसे हमें बॉक्स में शो करना है बस। मतलब ये जो डायग्राम है अगर मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दूं तो फिर ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। मतलब वही इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना है, आपको बॉक्स के अंदर शो करना है। इंफॉर्मेशन वही है, उसे आपको बॉक्स के अंदर से प्रेजेंट करना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर आपको बस उसे शो करना है यहां पे। डन। तो अब आप ये बताओ कि जो बजट लाइन है वो बजट लाइन कहां से क्रॉस करेगा, बजट लाइन हमेशा कहां से क्रॉस करेगा, और एंडाउमेंट आपने मार्क किया हुआ है। तो पासिंग थ्रू दैट एंडाउमेंट बंडल यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ दी बजट लाइन। पासिंग थ्रू दैट एंडाउमेंट बंडल यू हैव टू ड्रॉ दी बजट लाइन। आपको वहां से बजट लाइन ड्रॉ करनी है
जो इंडाउमेंट बंडल से क्रॉस करता हुआ जाएगा। क्लियर? एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन? व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज P1 by P2। क्लियर? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज P1 by P2। अब आप ये बताओ कि क्या डिमांड और सप्लाई मार्केट में हमेशा इक्वल होते हैं या सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस पे इक्वल होता है? मतलब माइक्रो में अगर मैं डिमांड और सप्लाई का ड्रॉ करता हूँ, या डिमांड का ड्रॉ कर दिया और ये सप्लाई का बना दिया, तो क्या डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर होते हैं? नहीं, दे आर ऑल इक्वल ओनली एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो वी हैव टू फाइंड बेसिकली एन इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो हियर। आपको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है इस पूरे यूनिट के अंदर। द पर्पस ऑफ रीडिंग दिस यूनिट इज फाइंड दैट इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, वेयर डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। क्लियर है? तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करना है, बट इसे समझाने के लिए मैं दो डायग्राम यूज करूंगा। एक जानबूझ करके पहले डिसइक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इफ देयर विल बी अ डिसइक्विलिब्रियम देन व्हाट विल हैपन। तो व्हाट हैपेंस इन अ डिसइक्विलिब्रियम? डिसइक्विलिब्रियम मींस सपोज मैंने प्राइस इससे ज्यादा ले रखा है, तो क्या होगा? तो फिर डिमांड कम होगा और सप्लाई, एक्सेस सप्लाई से प्राइस घट जाएगा। और प्राइस कम लेते हैं तो सप्लाई विल बी लेस, डिमांड विल बी मोर, ड्यू टू एक्सेस डिमांड प्राइस विल, तो प्राइस विल कीप ऑन चेंजिंग सो दैट डिमांड एंड सप्लाई बिकम्स equal. So I will first take disequilibrium, then I will take equilibrium and then I will explain efficiency. ठीक है? आपको तीन चीजें समझानी है, पहले disequilibrium डायग्राम, then equilibrium डायग्राम and efficiency concept। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे रिमेंबर, इसमें इस यूनिट के अंदर ग्राफ और डायग्राम थोड़े ज्यादा होंगे, तो रफ में आप ड्रॉ करते रहेगा। देखो, डिटरमाइन करने से पहले, दैट मीन्स बिफोर इक्विलिब्रियम, आइडेंटिफाई वन थिंग। गिवन एनी बॉक्स, Edgeworth box of consumption, you place person A here and you place person B here. Person A, रिमेंबर यहाँ पे कोई भी बंडल अगर मार्क करते हो, एनी बंडल, लाइक कोई पॉइंट अगर मैंने मार्क किया, तो ये पॉइंट एक सर्टेन एलोकेशन शो करेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन कह लो आप, गुड 1 और गुड 2 का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ए एन। तो अगर मैंने कोई, क्या लिख दोगे आप? x1a, यहाँ से x2a, यहाँ से x2b, here x1b. So suppose if there is one allocation, we have to check whether it is efficient or not. And efficiency actually means here Pareto efficient or not. But what is the meaning of Pareto efficiency? मतलब when an allocation will be Pareto efficient? किसी allocation को Pareto efficient कहना है if at that allocation or if at that distribution you cannot make anyone better off without making anyone else worse off. An allocation will be Pareto efficient if you cannot make anyone better off unless you make someone else worse off. But if at any distribution or allocation there is possibility that you can make someone better off without making anyone else worse off, then it is not Pareto efficient. मतलब अगर ये possible है that you can make someone better off without making anyone else worse off, then we can say that it is not Pareto efficient. और अगर Pareto efficient हो गया है तो Pareto efficient अगर हो गया, इसका मतलब है you cannot make anyone better off without making anyone else worse off. A better example you can relate. Suppose if all chairs in this class are occupied, तो हम कहेंगे जो रिसोर्स हमारा है वो efficiently allocate हो गया, because now I cannot make anyone better off unless I make someone worse off. मतलब एक नया स्टूडेंट आएगा तो obviously क्लास का कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जाएगा तभी पॉसिबल है, क्योंकि सारे चेयर ऑक्युपाइड है. बट इफ ऑल चेयर्स आर नॉट ऑक्युपाइड, देन यू कैन मेक समवन बेटर ऑफ
without making anyone else worse off. That means that allocation was not efficient. So Pareto efficient is that allocation or distribution where you cannot make anyone better off unless you make someone else worse off. But if you can make someone better off without making anyone else worse off, then it is not Pareto efficient. Definition part clear है? इसको जरा ऑपरेट करके देखिए कैसे होता है. मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक करना था. मान लो तो मैंने एक इंडिफरेंस कर्व यहां से ड्रॉ कर लिया पर्सन ए का. देयर कैन बी मेनी इंडिफरेंस कर्व फॉर पर्सन ए. सिमिलरली पर्सन बी विल हैव मेनी इंडिफरेंस कर्व, बट बी का ओरिजिन पॉइंट ये है. सो विद दैट ओरिजिन इट विल बी कॉन्वेक्स, सो इट विल अपीयर टू यू एज कॉनकेव. बट आप ये बताओ इंडिफरेंस कर्व का शेप डिपेंड किस पे करता है? Indifference curve shape depends upon how you write utility function or equation. If you write it as x1 into x2, then it is convex. But if a question is being given as x1 plus x2, then x1 plus x2 linear हो गया, straight line हो जाएगा, perfect substitute. Minimum of x1 comma x2 L shape, maximum of x1 comma x2 inverted L, x1 plus log x2 quasi-linear, x1 to the power c x2 to the power d Cobb Douglas, वो भी convex होगा. So shape of indifference का will depend upon utility function. ठीक है, अभी common form में पहले explain कर रहे हैं. A के लिए और B के लिए मैंने indifference का draw किया है. Passing through that point you can also draw tangencies. I have to check this point. ये पॉइंट मैंने मार्क किया M. आपको ये समझाना है कि क्या ये पॉइंट एफिशिएंट होगा, whether this point M is efficient or not. चेक करके बताओ ये पॉइंट M एफिशिएंट है या नहीं है. How to define Pareto efficiency? अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंट होगा then it is not possible to make someone better off without making anyone else. Now if you move from M point to this point N, then what happens? M to N का मूवमेंट में क्या होगा? M and N both are on same indifference curve. For which person? A. तो A is neither better off nor worse off, उसकी utility सेम होगी. But if you move from M to N, then you are moving from a lower indifference curve for B to a higher indifference curve of B, which means what? By moving from M to N, you are making B better off without making A worse off. It means point M was not Pareto efficient. M was not Pareto efficient because at that point it was possible that you can make B better off without making A worse off by moving from M point to N point. Similarly, if I draw indifference curve here, tangent, and mark this point as R, तो ये M point और R point दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो गए. किस पर्सन के लिए? B के लिए. बट एज कंपेयर टू M, R पॉइंट पे A की यूटिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी. सो इफ यू मूव फ्रॉम M टू R, you are making A better off without making B worse off. If you move anywhere somewhere in between, then इस पूरे स्पेस में हम कहीं भी मूव कर जाए दोनों ही बेटर ऑफ हो जाएंगे. A एंड B बोथ विल बी बेटर ऑफ. अब इस कंसेप्ट को आप यहां पे अप्लाई करो. ऐसे बॉक्स में अगर हमने एक इंडिफरेंस का बनाया और दूसरा इंडिफरेंस का बनाया, A और B का, यू कैन सी दैट कॉमन एरिया क्लियर. If you move between this common area, this is basically called as mutually beneficial trade area. या दोनों का बेनिफिट होता है अगर वो यहां मूव कर जाए. तो अगर मैंने ये इंडिफरेंस कर्व A का हायर बना लिया और B के लिए भी हायर ड्रॉ कर लिया है, तो वो कॉमन एरिया का स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कॉमन एरिया का स्पेस कम हो गया. अगर वो कॉमन एरिया का स्पेस एग्जॉस्ट हो जाए तो एग्जॉस्ट हो गया और हायर किया और स्पेस कम हो जाएगा. एग्जॉस्ट हो जाने का मतलब टेंजेंट हो जाएगा. जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगी ये एफिशिएंट हो जाएगा पेरेटो वाइज.
क्योंकि जितने भी बेनिफिट होने थे ट्रेड के, एक्सचेंज के, वो सारे हमने क्या कर लिए, एग्जॉस्ट कर लिए. ऑल बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड. व्हाई इट इज कॉल्ड एफिशिएंट? इसको एफिशिएंट इसलिए कहना है बिकॉज इफ यू मूव टू द राइट you make A better off and B worse off. If you move to the left, you make B better off and A worse off. So by that logic, that point is Pareto efficient. But box के अंदर कई सारी टेंजेंसी हो सकती है. There could be tangency here, so this point is also efficient. There could be tangency here, so this point is also efficient. There could be tangency here, so this point is also efficient. By connecting all tangency point, we get contract curve. So exactly what is a contract curve? Contract curve is locus of what? कौन से पॉइंट को ज्वाइन करके हमने contract curve बनाया? All Pareto efficient allocation. So locus of all Pareto efficient allocation is known as contract curve. And one question, and वो क्वेश्चन हमेशा ही हर पेपर में रहेगा, you have to write the equation of this contract curve. आपको इस contract curve का क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है. And but first of all, but what is contract curve? It is locus of all, locus of which point? Pareto efficient point. Locus of all Pareto efficient distribution. Locus of all Pareto efficient allocation. Starting from origin. ओरियन भी एफिशिएंट है भाई. ओरियन एफिशिएंट क्यों हो गया? ओरियन पॉइंट पे हाउ मच इज द एलोकेशन फॉर ए? 0 हो गया. दैट मीन्स एंटायर थिंग हैज बीन गिवन टू बी. सो इफ यू change that allocation, if you want to make A better off, you will have to make B worse off. So by that logic, origin point is also, so it will start with this origin and it will end at that origin. But having said that, ये सारे हमने well behaved preference के basis पे ले रखा है, well behaved preference के basis पे. ठीक है, मीनिंग क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व का आपको इक्वेशन लिखना है. वहां पे पेपर में रेयरली क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय पैरेटो एफिशिएंसी, बट जनरली क्वेश्चन का होगा फंक्शंस विल बी गिवन and the question will be calculate equilibrium relative price and write down the equation of contract curve and then plot it graphically. So we'll be plotting it graphically as well, but up to this yahan tak ka rough diagram. ये पूरे यूनिट के अंदर चलना है अभी, बिकॉज जो कंडीशन होगा वो आप यूनिट नंबर 1 में सेटिस्फाई करोगे और यूनिट 4 विल बी अगेन डीलिंग विद एफिशिएंसी, बिकॉज वहाँ पे एफिशिएंसी क्राइटेरिया वायलेट होगा. सो यू हैव टू कंपेयर. सो एफिशिएंसी टर्म क्लियर है, पैरेटो एफिशिएंसी. नाउ एक्सप्लेन द डिसिक्विलिब्रियम पार्ट फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम पार्ट and then calculate the equilibrium price. ठीक है, यहां तक हो गया. Make next diagram for disequilibrium. So we are explaining basically right now the market trade. We have to explain market trade. बॉक्स क्लियर है, अब ट्रेड को एक्सप्लेन करना है. ट्रेड मतलब एक्सचेंज.
So draw one diagram deliberately for disequilibrium. Draw it deliberately for disequilibrium. So first of all draw an Edgeworth box. ठीक है, साइड में थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे. डायमेंशन ऑफ दिस बॉक्स and draw a budget line passing through endowment bundle. Mark endowment bundle here. ये लाइन आप किसी भी स्लोप पे ड्रॉ कर लीजिए अभी. So we are taking any arbitrary price P1 and P2. Based upon that price, it is passing through endowment bundle. So if this is the endowment bundle, what you will mark here? Endowment of good 1 with A, marker endowment of good 2 with A, marker endowment of good 2 with B, and here it is endowment of good 1 with B. Person B is here, person A is here. ठीक है. Given this budget line where utility of person A will be maximized. A का बजट लाइन ये, B के लिए भी बजट लाइन वही होगा. इनकम दोनों का सेम नहीं होगा बट बजट लाइन दोनों के लिए सेम है बिकॉज एंडाउमेंट का बंडल दोनों के लिए सेम होना है. सो गिवन दिस बजट लाइन वेयर यूटिलिटी ऑफ ए गेट मैक्सिमाइज. ए का इंडिफरेंस कब आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते जाओगे तो जहां ए का इंडिफरेंस का बजट लाइन पे टेंजेंट हो गया that will be determining the optimal choice. So draw tangency here. This tangency point will determine what? यहां से क्या मार्क करना है? ये वो क्वांटिटी है जो कंज्यूमर ने एक्चुअल में बाई किया है. So this is x1a and this is x2a. This ये आपको न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है अभी. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा. एंडाउमेंट तो गिवन होगा बट आपको फाइंड क्या करना है, ये नंबर फाइंड करोगे आप. ऑप्टिमल चॉइस कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा कि ये लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड आएगा. ये तो मैंने अभी मार्क कर लिया है. जब आप न्यूमेरिकल में फाइंड करोगे देन इट विल यू विल बी नोइंग वेदर पर्सन इज बायर और सेलर. तो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या हो गया, एंडाउमेंट से कम कंज्यूम करने का मतलब सेलर है. सो पर्सन ए इज सेलर ऑफ गुड 1 and buyer of good 2. buyer of good 2, ये क्वांटिटी वो सेल कर रहा है और ये क्वांटिटी वो बाई कर रहा है. किसको सेल कर रहा है और किससे बाई कर रहा है? बी से कर रहा है. तो मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए क्या रिक्वायर्ड है? अगर मैं कितने मार्केट है, पहली बात 2 बिकॉज देयर आर 2 गुड्स. गुड 1 का मार्केट इक्विलिब्रियम क्या रिक्वायर करेगा? द क्वांटिटी दैट ए वांट्स टू सेल मस्ट बी इक्वल टू द क्वांटिटी दैट बी वांट्स टू buy at the same price, and the market for good 2 will require what? The quantity of good 2 that B wants to buy must be equal to the quantity of good 2 that person B wants to sell. Only then the market for good 2 will also be in equilibrium. But ये डायग्राम आप डेलिबरेटली किसके लिए बना रहे हैं? डिसइक्विलिब्रियम के लिए बना रहे हैं. मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं लेना है मुझे. तो मैंने ए का मार्क कर रखा और बी के लिए मार्क किया. तो given this budget line, B is indifference will be in this form. Make it tangent on budget line, but not at this point. Take it, suppose I take it to the right. तो अगर यहां टेंजेंसी बनाते इसका मतलब from that tangency you will determine what? Quantity of good 1 that B wants to consume, and this point will determine क्वांटिटी ऑफ गुड 2 दैट बी वांट्स टू कंज्यूम. अब आप ये बताओ बी गुड 1 का बायर है या सेलर है? बी के लिए ओरियन ये है, इस डायरेक्शन से मेजर करना है. ही इज कंज्यूमिंग मोर देन एंडाउमेंट. मोर देन एंडाउमेंट मीन्स ही वांट्स टू बाय इट. एंड हु वांट्स टू सेल गुड 1? अब जरा ध्यान से देखना. ए इज सेलिंग गुड 1 बट हाउ मच क्वांटिटी? ये गैप. एंड बी वांट्स टू बाई बट हाउ मच क्वांटिटी? लेस. सो इन द मार्केट फॉर गुड 1 वी विल हैव excess supply or excess demand. A wants to sell more, B wants to buy less. So in the market for good 1
excess supply. Clear? So we can say that in the market for good one, we have excess supply. Clear है? So if there is excess supply in any market, what will be the impact on price? Price कम होगा. So price of good one will start declining. Good one में market price will fall. Now think about good two. Who is buying and who is selling? Good two में कौन buy कर रहा है? A. Person A is buying. How much quantity he wants to buy? He wants to buy this gap. And how much quantity person B wants to sell? Less. A wants to buy more, but B wants to sell. So in the market for good two, excess demand. So in the market for good two, we have excess demand. And in the case of excess demand, what will be the impact on price? It will rise. Clear? So overall, tell me what will be the impact on price ratio? P1 is declining, so ratio will fall. P2 is increasing, therefore also ratio will fall. So this P1 by P2 will decrease, and P1 by P2 determine the slope. So when P1 by P2 will fall, it means this line gets flatter. और ये कब तक चेंज होता रहेगा? जब तक दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम ना आ जाए. तो ये डायग्राम हमने डेलिबरेटली किसके लिए बनाया है? डिसइक्विलिब्रियम के लिए. दिस इज डेलिबरेटली फॉर डिसइक्विलिब्रियम. डेलिबरेटली फॉर डिसइक्विलिब्रियम. सो गिवन दिस डिसइक्विलिब्रियम, आपको स्टेप क्लियर है कि जब मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो उसमें इस लाइन का स्लोप क्या करना है मुझे? नहीं, P1 में P2 कम हो रहा है तो लाइन विल गेट फ्लैटर, स्लोप विल डिक्लाइनिंग. ठीक है, लाइन का स्लोप डिक्रीज करें, इसका मतलब ये लाइन फ्लैटर होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको ये लाइन क्या कर देनी है? थोड़ी फ्लैट करनी है. क्लियर? सो डिसइक्विलिब्रियम इज क्लियर. आपको डिसइक्विलिब्रियम सिर्फ समझाने के लिए बोला गया है. एक्चुअल में फाइंड क्या करना है मुझे? इक्विलिब्रियम फाइंड करना है. सो नेक्स्ट इज फॉर इक्विलिब्रियम. ड्रॉ दैट एजवर्थ बॉक्स एंड मेक दैट लाइन अ लिटिल फ्लैटर passing through endowment bundle. Again mark endowment of good 1 with A, endowment of good 2 with A, endowment of good 2 with B, endowment of good 1 with B, person A and B. Now difference between previous diagram and this diagram. In previous diagram I draw tangency of person A here, and that tangency determine quantity of good 1 with A. So A wants to sell this quantity, B and A wants to buy this quantity. But in the earlier diagram for person B, हमने B का इंडिफरेंस का बजट लाइन पे तो टेंजेंट किया था, बट इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं किया था. टेंजेंसी इधर राइट साइड बनाई थी. अगर टेंजेंसी सेम पॉइंट पे हो जाए तो सो फ्रॉम दैट टेंजेंसी यू विल डिटरमाइन x1b, and from this tangency you will determine x2b. Now in the market for good 1, who is selling? A. How much quantity? This gap. And who is buying? B. And how much quantity? Exactly equal to that. तो जितनी quantity A sell कर रहा है उतनी quantity B buy कर रहा है. So in the market for good 1 we have equilibrium.
Similarly, in the market for good 2, we also have equilibrium. A is buying and B is selling. So now this is market equilibrium. This will be the market equilibrium. Clear? तो अगर ये मार्केट का इक्विलिब्रियम है तो व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज P1 by P2 and now these prices will be referred as equilibrium prices. Earlier जो प्राइस लिया था वो disequilibrium का प्राइस था, अब जो प्राइस है वो equilibrium प्राइस है. So this is market equilibrium price or called as competitive equilibrium or also known as Walras equilibrium, also referred as Walras equilibrium. तो तीनों में से कोई भी वर्ड अगर यूज हो रहा हो, मार्केट इक्विलिब्रियम, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम और वॉल्रस इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम और वॉल्रस इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये जो इनिशियल चैप्टर पेजेस होंगे एक्सचेंज वाले में, स्टार्ट के 2-3 साइड्स, उसमें यहां तक का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया. ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड फॉर न्यूमेरिकल पर्पस यू हैव टू फाइंड व्हाट? P1 by P2. न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको P1 by P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. क्लियर यहां तक? P1 by P2 का नंबर कैलकुलेट करना है और उसके लिए यू हैव टू नो द हाउ टू राइट द इक्वेशन algebraically. So we have to explain algebra of equilibrium. So we have to write algebra of equilibrium here first. Up to this is clear? Now from next page write algebra of equilibrium, and then from that algebra of equilibrium we will be explaining the Walras law. Algebra of equilibrium. And based upon that we have to explain Walras law. So basically equilibrium means what? इक्विलिब्रियम तो तभी होगा ना जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे. तो गुड 1 का डिमांड सप्लाई बराबर होना चाहिए, गुड 2 का भी डिमांड सप्लाई बराबर होना चाहिए. हाउ टू राइट इट? डिमांड मतलब पहले बताओ, सप्लाई मतलब एंडाउमेंट है. सो एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ ए प्लस एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ बी, दैट इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड 1. And demand for good 1 by A at equilibrium price P1 P2 star plus demand for good 1 by B at P1 P2 star, that will be equal to endowment. मतलब ये एक्चुअल में हो गया demand for good 1 total is equal to supply of good 1 total. So demand is equal to supply, demand will be equal to supply. वैसे इक्वेशन गुड 2 के लिए क्या लिखोगे? x2a at P1 P2 स्टार. मतलब हमने देखो डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर नहीं होते हैं, डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे ओनली एट. तो हमने ये जो डिमांड निकाला है वो कौन से प्राइस पे निकाला है? इक्विलिब्रियम प्राइस पे निकाला है. डिमांड फॉर गुड 2 by B at P1 P2 is equal to endowment of good 2 with A, endowment of good 2 with B. तो ये हमारा पहला सेट ऑफ इक्वेशन हो गया. ये इक्वेशन क्या बता रहा है? टोटल डिमांड दैट इज सम ऑफ ग्रॉस डिमांड इज इक्वल टू एंडाउमेंट, दैट इज टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई. टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई. इसे ऑल्टरनेट तरीके से लिखने का एक फॉर्म है, दैट मीन्स यू कैन एक्सप्रेस सेम थिंग इन अ डिफरेंट मैनर. ध्यान देना इस पे जरा. x1a at price P1 P2 माइनस एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ ए, मतलब ये नंबर हमने लेफ्ट साइड किया. ठीक है, यहाँ 1 पहले स्टेप समझ लेना. ये इक्वेशन लिखते समय x1a लिखना है और एंडाउमेंट की वैल्यू को लेफ्ट साइड किया है. दैट मीन्स यू हैव शिफ्टेड दिस नंबर लेफ्ट साइड. वन टर्म है दिस प्लस x1b at P1 P2 minus endowment of good 1 with B, that will be equal to 0. ये दोनों नंबर लेफ्ट साइड किया है.
एंड व्हाट इज दिस नंबर नाउ? x1 को पढ़ना है ग्रॉस डिमांड, उसमें से क्या माइनस किया, तो ग्रॉस डिमांड माइनस एंडाउमेंट इज नोन एज नेट डिमांड। तो ये नेट डिमांड गुड 1 का है ए के लिए, और ये नेट डिमांड गुड 1 का है, और दोनों के नेट डिमांड का सम इक्वल टू 0 है। इसका मतलब नेट डिमांड का सम इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सम इक्वल टू 0 तभी होगा जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर, इफ वन इज बायर देन द अदर इज सेलर। सो इन द मार्केट फॉर गुड 1 both can't be seller or both can't be buyer. So if one person is buying, other person must be selling it. And for market equilibrium, it is needed that the quantity that A wants to buy is equal to the quantity that B wants to sell. So the sum of net demand is equal to 0. इक्विलिब्रियम को आप अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। पहले में बोला गया टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, नेक्स्ट में क्या करें, सम ऑफ नेट डिमांड इक्वल टू 0. So as you have written it for good 1, similarly write it for good 2. Complete that equation. This is second set of equation. Next set of equation is this. Next set of equation. Done. अब ये जो टर्म लिख रहे हैं ग्रॉस डिमांड माइनस एंडाउमेंट, इसको नेट डिमांड कहते हैं, और नेट डिमांड को ही एक्सेस डिमांड भी कहते हैं। So I am writing this complete term, this complete value as E1A. ठीक है, E को आप रिलेट कर लेना विथ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड इज नथिंग बट नेट डिमांड। एक्सेस डिमांड को ही क्या बोलते हैं, नेट डिमांड कहते हैं। तो इस कंप्लीट नेट डिमांड की जगह हमने E1A लिखा है, और इस टर्म की लगी क्या लिखेंगे, E1B इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर के लिए E2A एट P1 P2 प्लस E2B एट P1 P2 इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सेम थिंग। ठीक है, राइट इट इन एन ऑल्टरनेट फॉर्म नाउ। दिस इज E1A एंड दिस इज E1B। ये एक्सेस डिमांड गुड 1 का A के लिए, एक्सेस डिमांड गुड 1 का B के लिए। गुड 1 के एक्सेस डिमांड को ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या ऐड किया हमने, E1A प्लस E1B एंड देन कॉल इट Z1। तो Z फॉर एग्रीगेट एक्सेस डिमांड। दिस वाज एक्सेस डिमांड, ये भी एक्सेस डिमांड है। इन दोनों एक्सेस डिमांड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यू विल कॉल इट aggregate excess demand. So Z1 at P1 P2 star is equal to 0 and Z2, तो जब आप एग्रीगेट करोगे तो A और B नहीं लिखना फिर, ठीक है, वो एग्रीगेट हो गया। P1 P2 स्टार इक्वल टू 0। ठीक है, एग्रीगेट एक्सेस डिमांड हो गया। Clear? So first was gross demand, next was net demand. Net demand is excess demand, और excess demand को ऐड करके क्या लिख देंगे, aggregate excess demand के टर्म लिखना है। Now write one connecting line for the next topic. From this it follows that, from this it follows that, from this it follows that if aggregate excess demand for good 1 is 0, if aggregate excess demand for good 1 is 0, if aggregate excess demand for good 1 is 0, then
aggregate excess demand for good 2 must necessarily be 0. Then aggregate excess demand for good 2 must necessarily be 0. Must necessarily be 0. So in order to prove this, it is convenient to establish a property of aggregate excess demand function. It is convenient to establish a property of aggregate excess demand function, known as Walras law, known as Walras law. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे, पहले आप Walras लॉ और पहले स्टेटमेंट उसका. Walras law. According to this law, next paragraph में, according to this law, value of aggregate excess demand is identically equal to 0. Value of aggregate excess demand is identically equal to 0. Value of aggregate excess demand is identically equal to 0. Underline that. Value of aggregate excess demand is identically equal to 0. So what do you mean by value? ये aggregate excess demand है, इसका मुझे value निकालना है. तो value के लिए price से क्या करेंगे? Multiply कर देंगे. उनका जो aggregate होगा that will be equal to 0. So Walras law say that value of aggregate excess demand is identically equal to 0, which means in equation as P1 Z1 plus P2 Z2 identically equal to 0, identity का sign. That means it will be correct for all prices and not necessarily for equivalent price. That means this equation will hold for all prices and not necessarily for equivalent. Equality जब लिख रहे हैं वो equivalent के लिए हो गया. This is true for all the values. इसलिए हमने स्टार यहाँ मार्क नहीं किया अभी. And there is a short proof. You can simply prove it. ये easily prove हो जाएगा. Just recall how to write budget constraint equation for any person. तो बजट लाइन इक्वेशन क्या लिखते हैं? P1 x1 plus P2 x2 equal to income. And what is income? Value of endowment. So you write it basically as P1 x1 plus P2 x2 identically equal to income, and income is P1 W1 प्लस P2 W2. ठीक है, सब एक ही लिखना है. इट इज P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू इनकम लिखा है. P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू इनकम है. ठीक है, अब ये काम करो, ये नंबर एक स्टेप पे ध्यान देना. अभी P1 W1 इस नंबर को आपको लेफ्ट साइड लेना है. सो इफ यू टेक P1 W1 टू द लेफ्ट, P1 will be common, and in bracket what you will write? x1a minus endowment of good 1 with a plus, now take P2 W2 to the left, ये P2 common हो जाएगा. In bracket x2a add P1 P2 minus endowment of good 2 with a identically equal to 0. Identically equal to 0. And what is this number in bracket? ये ग्रॉस डिमांड माइनस एंडाउमेंट हो गया.
What is gross demand minus endowment? Net demand, that is excess demand. So write it as P1 E1A plus P2 E2A identically equal to 0. Clear? Equation number 1. And similarly you can write it for पर्सन बी. अब बी के लिए या तो आप तीनों इक्वेशन रिपीट करो दोबारा, या फिर लास्ट का जो इक्वेशन लिखा है उसमें ए की जगह क्या लिख देने, बी लिख देने. तो सिमिलरली आई विल राइट P1 E1B प्लस P2 E2B आइडेंटिकली इक्वल टू 0. And adding equation 1 and 2 we get, adding equation 1 and 2 we get, adding equation 1 and 2 we get. तो बताओ क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो P1 कॉमन आ जाएगा, E1A प्लस E1B क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा, वो Z1 हो जाएगा. So that will be P1 Z1 प्लस P2 Z2 आइडेंटिकल इक्वल टू 0. ऊपर जो लिखा हुआ गया. डन. तो अगर ये ऑल वैल्यूज के लिए करेक्ट है देन इट विल बी करेक्ट फॉर इक्वम वैल्यू ऑल्सो. इफ आइडेंटिटी होल्ड्स फॉर ऑल द वैल्यूज इट विल ऑल्सो होल्ड फॉर इक्वम वैल्यू. देयरफॉर यू कैन राइट P1 स्टार Z1 P1 star P2 star plus P2 star Z2 P1 P2 star and then equal to 0. Value of aggregate excess demand is equal to 0. Value of aggregate excess demand is equal to 0. ठीक है, राइट ऑन बिलो जस्ट वन पैराग्राफ here. From this it follows that if we find a set a price, from this it follows that if we find a set a price where demand for good 1 is equal to supply of good 1. If demand for good 1 is equal to supply of good 1, मतलब market for good 1 में equilibrium हो गया. If you find a set of price where demand for good 1 is equal to supply of good 1, then we are guaranteed that demand for good 2 must equal supply of good 2. In general मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा तो सेकंड मार्केट ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा. In general, if there are n number of goods, then we need to find only a set of price where n minus 1 number of market are in equilibrium. Then Walras law implies that
nth market, Walras law implies that nth market will automatically be in equilibrium. Nth market will automatically be in equilibrium. Nth market will automatically be in equilibrium. However, the problem is that we have only n minus 1 independent equation. We have only n minus 1 independent equation. We have only n minus 1 independent equation. But we have to determine n number of prices. But we have to determine n number of prices. We have to determine n number of prices. Full stop. To solve this problem, we consider price of one good as numerator. We consider price of one good as numerator. Underline that. We consider price of one good as numerator. And what was the interpretation of numerator? सन 3 में बजट लाइन के चैप्टर में क्या है, जैसे न्यूमरेटर बनाएंगे उसका प्राइस 1 ले लेंगे, वो बेसिस ऑफ प्राइसिंग होता है. वी कंसिडर प्राइस ऑफ वन गुड एज न्यूमरेटर एंड रिलेटिव टू दैट we express price of other good. Relative to that we express price of other good. Relative to that we express price of other good. That is why it is said that in general equilibrium model, in general equilibrium model we determine only relative price. In general equilibrium model we determine only a relative price, as absolute prices are indeterminate. As absolute prices are indeterminate. As absolute prices are indeterminate. Absolute prices are indeterminate. The last paragraph actually means that suppose if you consider n number of goods, suppose I take 10 different product, तो मैंने अगर n minus 1 मार्केट में इक्विलिब्रियम शो कर दिया तो n minus 1 क्या हो जाएगा, 9 मार्केट. इक्विलिब्रियम लिखने का मतलब है गुड 1 के मार्केट में डिमांड और सप्लाई को क्या करेंगे, इक्वेट किया. वैसे गुड 2 के मार्केट में डिमांड सप्लाई इक्वेट किया एंड टिल यू गो फॉर गुड 9, n minus 1 9 हो गए. So if 9 market are in equilibrium, then 10th market will automatically be in. But problem is that how many equation you have written? 9 independent equation है, 10 वेरिएबल डिटरमाइन करने हैं. जितने वेरिएबल है अननोन है उतने इक्वेशन चाहिए थे, 1 इक्वेशन शॉर्ट हो गया. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वन गुड का प्राइस क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर मान लिया. जैसे न्यूमरेटर माना वो 1 हो गया. तो एक्चुअल जो मॉडल पढ़ा जा रहा है वो 2/2/2 मॉडल है. सो वी आर रेफरिंग टू ओनली 2 गुड. तो अगर गुड 1 के मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा तो गुड 2 का मार्केट ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा. तो अगर हमने गुड 1 का प्राइस 1 मान लिया, देन आई नीड टू फाइंड ओनली व्हाट, P2. तो अगर मैंने गुड 1 का प्राइस 1 कंसिडर कर लिया है तो मुझे क्या निकालना है, गुड 2 का प्राइस निकालना है. एंड हाउ टू फाइंड गुड 2 प्राइस, मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर गुड 2 लिखे होंगे. मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर गुड 2 मींस डिमांड इक्वल टू, सो डिमांड फॉर गुड 2 बाई ए प्लस डिमांड फॉर गुड 2 बाई बी इक्वल टू
endowment of good 2 with A, endowment of good 2 with B. बट डिमांड कैलकुलेट करते समय यू विल रिक्वायर प्राइसेस, प्राइस की जरूरत पड़ेगी। तो जहां प्राइस की जरूरत पड़ेगी वहां P1 की जगह क्या लिखोगे, और P2 अननोन रहेगा, एक ही वैल्यू अननोन रहेगी। फिर एंडाउमेंट गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपके पास एक इक्वेशन है, एक अननोन है, वो वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमने P1 1 मान रखा और मान लो P2 की वैल्यू आई 3, तो आप आंसर लिखोगे P1 by P3 इज 1/3। बट ध्यान देना, ये 1/3 का जो नंबर है, ये हमने P2 की वैल्यू 3 निकाली है, अज्यूमिंग दैट P1 इज, तो अगर P1 1 की जगह 2 होता तो वो 6 हो जाएगा। बट दोनों केस में रेशियो तो 1/3 ही रहेगा। सो जनरल इलेक्ट्रम में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, रिलेटिव प्राइस, रेशियो निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे। इन जनरल इलेक्ट्रम वी डिटरमाइन रिलेटिव नॉट द एब्सोल्यूट। ठीक है, यहां तक का पॉइंट। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी है, और मतलब ये इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 31, तो उस इलस्ट्रेशन में भी होगा। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन 14, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन है, मैं पास पेपर वाला कर दे रहा हूं आपको, सेपरेट जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में गिवन है फर्स्ट एग्जांपल वर्कबुक में, वो आप कर लेंगे। सो जस्ट अटेम्प्ट 1 न्यूमेरिकल, ठीक है, दिस इज इन 2014, 14 का न्यूमेरिकल होगा, पेज नंबर 73 पे बुकलेट में। ठीक है, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में गिवन है, वो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। पर्सन ए का यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है और बी का यूटिलिटी फंक्शन है। बी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, ए का वेल बिहेव्ड है, वेल बिहेव्ड कह लो या कॉप डगलस कह लो, और ये उसका एंडाउमेंट है गुड 1 गुड 2 का। मुझे रिलेटिव प्राइस फाइंड करना है, सो आई एम राइटिंग दिस इंफॉर्मेशन हियर एज पर्सन ए एंड पर्सन बी। ठीक है, ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है वो एंडाउमेंट है 40,10, एंड बिलो राइट डाउन यूटिलिटी इक्वेशन x1 x2 and here write it as minimum of x1 x2। ठीक है, इक्वेशन वगैरह याद है, फॉर्मूला, बिकॉज चॉइस कैलकुलेट करना है, मतलब डिमांड निकालना है, तो चॉइस और डिमांड का चैप्टर सेम 3 में किया है। ये कौन सा फॉर्म इक्वेशन हो गया, कॉप डगलस है, तो कॉप डगलस का फॉर्मूला याद है। कॉप डगलस का फॉर्मूला, जब आप x1 टू द पावर c x2 टू द पावर d लिखते थे, तो x1 की वैल्यू क्या आती थी, c बाई सी प्लस डी इंटू m अपॉन P1, ये नंबर आता था, उसको अप्लाई करना। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी कंसिडर प्राइस ऑफ गुड 1 एज 1, लेट P1 be 1, let P1 be 1, so we have to find what, P2, और P2 निकालने के लिए you have to write demand equation for good 2। so how much is demand for good 2 by A, apply this formula, good 2 का निकालना है डिमांड, यहां दोनों का पावर 1 हो गया, तो गुड 2 के लिए क्या लिखते थे, d by c plus d, it will be 1 by 2 into income upon P2। ठीक है, एंड व्हाट इज इनकम, व्हाट इज इनकम हियर, पर्सन ए का इनकम, पर्सन ए का एंडाउमेंट है 0,20, एंडाउमेंट का वैल्यू वर्थ वो इनकम होता है, तो P1 इंटू 0 प्लस P2 इंटू 20, तो हाउ मच इज इनकम, P2 इंटू 20, सो इट इज हाफ इंटू 20 P2 अपॉन P2, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस नंबर इज 10। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट
यस सर, P1 X2A, ये फॉर्मूला D बाई सी प्लस डी इंटू एम अपॉन P2 लिखा है, इनकम हमने एंडाउमेंट से निकाला है। Now apply it or similarly write demand for good 2 by B, ये फॉर्मूला याद है? What is the ratio? यहाँ पे ये गुड 1 गुड 2 किस रेशियो में यूज हो रहा है? 1:1, x1 will always be equal to x2. So when you write budget line P1 x1 plus P2 x2 equal to income, x2 की जगह भी x1 लिख देंगे, x1 कॉमन लेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है, m अपॉन P1 प्लस P2, एंड इन प्लेस ऑफ इनकम व्हाट यू विल राइट? इनकम की जगह स्टेप लिख लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो, P1 W1 प्लस P2 W2, ये B के लिए लिखा जा रहा है, ओवर P1 प्लस P2. सो हाउ मच इज P1? 1. तो 1 इंटू W1 इज हाउ मच? 40. तो इट इज 40 प्लस 10 P2, ये 10 है, 40 प्लस 10 P2 अपॉन 1 प्लस P2 इज X2B. दिस इज X2A. क्लियर है? सो राइट मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर गुड 2, और ध्यान देना अगर गुड 2 का मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा तो गुड 1 का मार्केट ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा. सो हाउ टू राइट मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर गुड 2? डिमांड फॉर गुड 2 बाई ए, दिस नंबर, प्लस डिमांड फॉर गुड 2 बाई बी, दिस नंबर, मस्ट बी इक्वल टू डिमांड फॉर गुड 1 बाई ए, डिमांड फॉर गुड 2 बाई बी must be equal to total supply. and how much is supply of good 2? गुड 2 का सप्लाई, ए के पास एंडाउमेंट था 20 और इसके पास है 10. सो आई राइट इट एज X2A प्लस X2B इक्वल टू एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ ए प्लस एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ बी. ठीक है, पेपर में प्रेजेंटेशन क्लियर रखिएगा. लिखने का फॉर्म ये होगा, इस नंबर की जगह 10 आ जाएगा, इस नंबर की जगह ये आ जाएगा, और एंडाउमेंट गिवन है. सो इट इज 10 प्लस 40 प्लस 10 P2 अपॉन 1 प्लस P2. एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ A is 20 and for B it is 10. Now in this equation only one unknown and therefore you will get the value of P2. यहां से P2 की वैल्यू आ जाएगी. और जब P2 की वैल्यू आ जाएगी तो P2 की वैल्यू अगर आप यहां पुट कर दोगे तो ये नंबर आ जाएगा डायरेक्टली. How much? P2 only. P2 will be equal to 2. ठीक है. So what is equilibrium relative price? We have taken P1 as 1 and P2 is 2. So P1 by P2 is 1 by 2. Price ratio is 1 by 2. अब P2 की वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो ये नंबर आ जाएगा. How much is that? P2 की जगह 2 लिख लो आप. इस P2 की जगह यहाँ 2 लिख दीजिएगा. आपने गुड 2 का डिमांड ए और बी का निकाल लिया. दिस 2 लिखना है तो ये 20/60 by 3 20.
So A is consuming और 10 यूनिट एंड B is consuming 20 यूनिट। तो गुड 2 का डिमांड तो निकल गया, रह गया गुड 1 का निकालने के लिए और इसको ग्राफ के अंदर शो करना है। गुड 1 क्लियर है, 10 और 20 आ रहा है। अब एक फॉर्म आप यहां से फॉलो करना, x2 हमने गुड 2 निकाल लिया, x2a was 10 and x2b was 20। क्लियर है? इसका पहले मुझे नेट डिमांड बता दो, व्हाट इज A1a, स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। E इज फॉर एक्सेस डिमांड, नेट डिमांड है वो, एंड नेट डिमांड इज ग्रॉस डिमांड माइनस endowment। So how much is that? Gross demand is this 10 and what was endowment? Good 2 का endowment, good 2 का 20। So how much is net demand? Minus means buyer or seller? कंज्यूम कम किया और endowment ज्यादा था। पर्सन इज सेलर, ठीक है, इज सेलिंग 10 यूनिट। पैरेलल में जरा इधर बताइएगा पहले, हाउ मच इज एक्स डिमांड फॉर बी? ग्रॉस डिमांड माइनस एंडाउमेंट। ग्रॉस डिमांड इज 20, व्हाट इज एंडाउमेंट? एंडाउमेंट इज 10, सो दिस नंबर इज पॉजिटिव 10। पॉजिटिव 10 मीन्स गुड 2 इसने 10 सेल किया और इसने 10 बाई किया, ये एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज एक्चुअल में ये है। अब आप ये बताओ x1 a की वैल्यू कितनी आएगी? x1 a, ये कॉब डगलस का फॉर्मूला था यहाँ फर्स्ट पर्सन के लिए, c बाई सी प्लस डी इंटू एम अपॉन p1, अप्लाई दैट। c and d are 1, so it is 1 by 2। what is income? पर्सन ए का एंडाउमेंट है 0,20, तो इट विल 20 P2 और P2 कितना है? 2 आया। सो 20 P2 मीन्स 20 इंटू 2, दैट विल बी 40 एंड P1 इज 1, सो दिस इज 20। सो हाउ मच इज एक्सेस डिमांड फॉर ए? ग्रॉस डिमांड माइनस एंड, सो इट इज 20 माइनस 0, so it is positive 20। positive means person A is buyer। सेकंड के लिए क्या आएगा? x2b कॉम्प्लीमेंट है, so for complement the x1 x2 will remain same। तो ये जो 20 आ रखा ये भी 20 आएगा, ठीक है, ये नंबर सेम होना है, सेम प्रोपोर्शन है। so this number will be also 20। x2b will also be 20। so how much is a2b? x2b minus endowment, so that will be 20 minus what was endowment? 40, 10, 40 है ना, so it is minus 20 means ये नंबर हमेशा सेम आने हैं विथ अपोजिट साइन। जितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है उतनी क्वांटिटी वो सेल करेगा। क्लियर? ये एक्सचेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, 2% इकोनॉमी का ये एक्सचेंज है। 2% इकोनॉमी में दिस इज बेसिकली द एक्सचेंज। कैन यू प्लॉट ऑल दीज इंफॉर्मेशंस इन एजवर्थ बॉक्स? दैट विल बी द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। यहां तक का क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड भी रखिएगा क्योंकि टाइम भी लगना है, कंसेप्ट भी क्लियर और मिस्टेक नहीं करना है। बट यहां पे ये करने के बाद यू हैव टू प्लॉट इन ग्राफ, ग्राफिकली प्लॉट करो उसको। जस्ट ड्रॉ एन एजवर्थ बॉक्स एंड शो ऑल योर आउटकम। बॉक्स ड्रॉ करना और उसमें ये सारे आउटकम शो करने हैं। यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। डन? Now draw all information in box. So first you will draw that, determine the dimension of box. What is the dimension of box first? Box का dimension एंडाउमेंट के लिए x1 की वैल्यू टोटल कितनी होगी?
0 और 40, ठीक है 40, और गुड 2 के लिए 30, ठीक है। तो ये 40 लेना है और ये 30 लेना है, क्लियर। ऑफ दैट डायमेंशन ड्रॉ एजवर्थ बॉक्स, प्लेस पर्सन ए हियर, पर्सन बी हियर। वेयर इज एंडाउमेंट बंडल, ठीक है। ए का एंडाउमेंट 0,20 था और बी का एंडाउमेंट 40,10 है। तो वेयर इज एंडाउमेंट, ए के लिए 0,20, 0,20 ये पॉइंट आ जाएगा। बजट लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू विच बंडल, एंडाउमेंट बंडल। एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, P1/P2, ये आपने फाइंड कर रखा है, 1/2 आ रखा है। तो 1/2 के स्लोप से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करना, 1/2 के स्लोप पे ड्रॉ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम एंडाउमेंट बंडल विद अ स्लोप ऑफ 1/2। तो 1/2 स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर इधर हमने 1 ले रखा है तो इधर नंबर 2 आना चाहिए। तो अगर ये नंबर 20 है तो इधर नंबर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एंडाउमेंट बंडल कनेक्ट दिस, ये बजट लाइन है, ठीक है। एक्यूरेट होना है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी नहीं है, यू हैव टू प्लॉट इट। सो दिस विल बी द बजट लाइन। प्रीवियस वाज दिस, कहाँ पे रह रहे, नंबर सेम है, मतलब करेक्ट है जो सॉल्यूशन है। वेयर ये P1 W1 है, W1 40 है, P1 into 40 है, ठीक है। क्लियर। अब ए का इंडिफरेंस कब कैसा है, यूटिलिटी फंक्शन फॉर ए was x1 into x2 and what was for b, this was for a, for b क्या लिखा हमने, मिनिमम ऑफ x1 x2। तो जिसके लिए कॉम्प्लेक्स होगा वो तो आप इधर से ड्रॉ करोगे कॉन्वेक्स, बट वो आप मार्क मत करना पहले। अगर किसी क्वेश्चन में एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट मुझे पता होता है एग्जैक्टली, वो किंक होंगे। तो अगर पर्सन बी के लिए मुझे ड्रॉ करना होगा तो इंडिफरेंस कप का शेप क्या होगा, ये किंक वाले पॉइंट होते जाएंगे, एंड ऑल किंक विल बी ऑन दिस लाइन, 1:1 का रेशियो आएगा। बट ये इंडिफरेंस का प्लॉट इस एक्सेस से करना है, प्लॉटिंग करना है। यहाँ पे कितना आना है इधर, ए के लिए कॉन्वेक्स, ए के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, किसके लिए है, तो बी के लिए एल शेप बनाएंगे। अगर ये 1 लेना है तो ये भी 1 आएगा, ये 2 लेंगे तो ये भी 2 आएगा। तो अब आप ये बताओ इधर कितना डिस्टेंस मैंने लिया, नहीं 40 ये है, इधर कितना लिया है, तो इधर भी कितना आएगा, 30 तक ही आएगा वो लाइन, 30-30 का रेशियो हो सकता है। तो ये डायगोनल में हिट नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा। आपने अगर एक सर्टेन पॉइंट यहां लिया, लिए 1 और ये 1 का यहाँ पे किंग का बना रहे हो, नेक्स्ट पे 2 और 2 पे बनेगा, 3 और 3 पे बनेगा। तो अगर ये डिस्टेंस इधर 30 आ रहा है तो इधर भी डिस्टेंस 30 तक ही जाएगा। तो आप एक 30 तक का पॉइंट यहां पे मार्क कर लीजिएगा, मतलब इधर से 30 मेजर करना है। एंड देन कनेक्ट दी डायगोनल एंड ऑन दैट ड्रॉ एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व, ये मार्क करते जाइएगा इलस्ट्रेशन के लिए। और एक आपका बजट लाइन के ऊपर नेसेसरली शो करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इनफैक्ट ये है। एंड फॉर ए व्हाट इज द शेप, फॉर ए व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ए का इंडिफरेंस कर्व इक्वेशन क्या है, कॉब डगलस है, तो कॉन्वेक्स होगा और ऑप्टिमल चॉइस विल बी एग्जैक्टली ऑन दिस पॉइंट। यू कैन ड्रॉ एज मेनी। दिस इज द
इक्विलिब्रियम पॉइंट नंबर बताओगे क्या आएगा, यहाँ के नंबर बता दीजिएगा कोऑर्डिनेट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यहाँ की वैल्यू बताना पहले, फिर ये नंबर बताइएगा। ये हो गया x1a, दिस इज x2a, नंबर बोलो a के लिए, x2a फर्स्ट, x2a फर्स्ट जो आपने भी सॉल्व कर रखा है इसका नंबर पूछ रहा हूं मैं। x2a is 10, x1a 20 है, x1a 20 और x2a ये 10 है। और b के लिए क्या है, ये हो गया x2b, व्हाट इज x2b 20 and how much is x1b, x1b is x1b 20, ये 20 है तो रिमेनिंग 20 होगा, डन। ठीक है, यहाँ पे जो मार्किंग है ये x2b है, ये x1b निकाला हमने, ठीक है, दिस इज x1b 20, कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों का सेम रहना है, गुड 1 गुड 2। ये प्लॉटिंग हो गई, क्लियर। तो योर प्लॉटिंग विल डिपेंड अपॉन द साइज डायमेंशन, ध्यान से आपको यूटिलिटी इक्वेशन देखना है, उसके अकॉर्डिंगली वहां प्लॉट करना है। तो जनरल फॉर्म में पहले हमने P1 की वैल्यू को 1 माना है और फाइंड किया P2, बट जनरल इक्विलिब्रियम में कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है कि आप जिसको हर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन द वे टू सॉल्व विल ऑल्सो बी डिफरेंट, जैसे जैसे क्वेश्चन बदलता जाएगा उसको सॉल्व करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। मतलब ये वन इक्वेशन नहीं है कि आपने एक स्टेप सीख लिया और उसी स्टेप को सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे, तो वैसे जनरल इक्विलिब्रियम में सॉल्व नहीं होगा। आपको जनरल इक्विलिब्रियम में केस टू केस याद रखना है और केस टू केस सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। यहाँ तक का स्टेप क्लियर है, P1 बाई P2 कैलकुलेट हो जाएगा। आपने ये क्वेश्चन 2014 का किया है, बेस्ड ऑन दैट आप जो वर्कबुक में पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन का, वो इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन कर लेना, सेम है वो। तो इस एग्जांपल के बेसिस पे आप जो वर्कबुक का फर्स्ट क्वेश्चन होगा इलस्ट्रेशन वाला जो सॉल्व है ऑलरेडी, उसके अंदर भी अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फर्स्ट, क्लियर। सो दिस इज एक्सचेंज चैप्टर, ठीक है। यहां से एक्चुअल में मोस्टली क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एक्सचेंज चैप्टर and then welfare will be you can say short chapter. Exchange में mainly we are explaining that second condition. So for that second condition we have taken first of all the endowment. Based upon endowment we have drawn Edgeworth box, and in that Edgeworth box we have determined whether it is Pareto efficient or not. तो efficient bundle कौन से होंगे, जहां जहां टेंजेंसी आती जाएगी वो एफिशिएंट बंडल होगा। आप मुझे उस इक्वेशन में जो अभी ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होगा ये बताओगे, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व हियर, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, उसका इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व हियर। ये जो लाइन है ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, ठीक है, ये लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर्व होगा, उसका इक्वेशन, बट व्हाई आई एम कॉलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट कर्व। जैसे ये बना रखा है वैसे ही लाइन आप यहां भी तो बना सकते थे। ये क्या ये पॉइंट एफिशिएंट होगा, नहीं होगा, बिकॉज व्हाई नॉट दिस पॉइंट इज एफिशिएंट, बिकॉज इफ यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस you make A better off without making B worse off, so that point is not efficient. But why this is efficient, because you can't make A better off further without making B worse off. So all these points are on contact curve. So what will be the equation of contact curve?
इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा हूं मैं, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस लाइन। ये कौन से पॉइंट को कनेक्ट करके बना रहे हैं, सारे किंक वाले पॉइंट को है। तो किंक पे x2 b और x1 b की वैल्यू सेम होनी है, इस लाइन पे ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो आप x1 b अपॉन x2 b इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। क्या इसको टेंजेंसी कहेंगे, क्या ये टेंजेंसी का पॉइंट है? टेंजेंसी नहीं कहलाना उसको। टेंजेंट होगा तो MRS और MRS बराबर होगा। टेंजेंसी का मतलब एक्चुअल में ये टेंजेंसी है, यहां से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, इसलिए वो टेंजेंसी कहलाएगा। जब आप इंडिफरेंस कर्व को एल शेप ड्रॉ करते हैं तो यहां पे टेंजेंसी मार्क नहीं कर सकते, लाइन कैन बी स्टीपर और लाइन कैन बी n नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो यहां पे MRS से इक्वल टू MRS भी नहीं लिखना है। और वैसे भी फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हाउ मच इज MRS, कॉम्प्लीमेंट का MRS क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वाले फंक्शन का MRS क्या होगा, आइदर 0 और इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ चीजें आपको सेम 3 में जो चैप्टर पढ़ रखा है, चॉइस, डिमांड, उन कंसेप्ट को यूज करना है इन दिस यूनिट, फर्स्ट एज वेल एज इन दी फोर्थ, ठीक है। तो ये क्लास नंबर 1, इसके बेसिस पे जो डिक्टेशन और नोट्स है वो सारे ऑनलाइन के ऊपर अपलोडेड है, और जो बाकी अलग अलग केसेस भी होंगे, डिफरेंट केसेस, सो यू कैन रेफर टू दोज नोट्स एज वेल, एंड बेस्ड अपॉन दिस जस्ट सॉल्व इनिशियल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 31 वर्कबुक। इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके आगे की कंटिन्यूटी लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगी, एक्सचेंज में। इनिशियल वाले चैप्टर पे थोड़ा टाइम लगाना, बट थोड़ा अलर्ट रहना एक्चुअल में। सेम 3 का और इसमें 4 का लिंक है, और डिफिकल्टी फिर अलग अलग, बिकॉज एक सिंगल मेथड अगर होता है तो इजी हो जाता है कि हमने मेथड लर्न कर लिया, उसको अप्लाई कर लिया। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन के मेथड अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे।